Chemical bond is a force of attraction between two or more atoms, which keeps them intact together to provide each atom more stability. The chemical bond is not a physical structure, rather than it is a energy relationship. There are different types of chemical bond, but each chemical bond involves the electron which are either transferred or shared between the two atoms. For an atom to be stable, its valence shell must be fully filled, that is 8 electron. It is stable electronic configuration in its outermost shell. But hydrogen and helium can have only 2 electrons in their only shell. Noble gases, on the other hand, have fully filled valence shell, which are present to the right side of the periodic table. They have very stable electronic configuration, and as a result they do not form chemical bond, but all other atoms form chemical bond. They must lose or gain the electrons or share them with other atoms. For example, magnesium have two valence electrons and is unstable, and hence lose two electrons to have a new valence shell which is already fully filled, forming an ion, that is magnesium plus 2 charged ion. On the other hand, chlorine, which have 7 electrons in its outermost shell and gain 1 electrons, forming chloride ion, or positively charged ions attract each other. For example, magnesium and chloride attract each other to form magnesium dichloride. Magnesium dichloride is a neutral molecule and have ionic bond. Instead of losing or gaining electrons, some atoms share electrons to form covalent bond like hydrogen. Now the question arises, why atom forms chemical bond? कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? ऑक्टेट रूल। हर एक एटम की एक टेंडेंसी होती है कि वह अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले। 8 इलेक्ट्रॉन्स को हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में पूरा करना चाहता है। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर हर एक एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वह अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर ले। इन डूइंग सो इट फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। नंबर 1, आयोनिक बॉन्ड। Ionic bond may be defined as an electrostatic force of attraction which is formed by complete transfer of electron from one atom to another. For example, sodium, which have electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, it has 1 electrons in its outermost shell. If it loses this electron, outermost shell will be second, which have already 8 electrons. तो सोडियम अपने आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और कैटायन बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन ऑन द अदर हैंड हैव 7 electrons in its outermost shell. You can check by just writing its electronic configuration. So when chlorine gains 1 electron to complete its octet, becomes negatively charged. Now these two
or positively charged species are formed just by complete transfer of electron from sodium to chlorine. This bond formed between a sodium positive and chlorine negatively charged ion is known as a ionic bond. So this type of bond, which is formed by complete transfer of electron from one atom to another just to complete its octet, is known as ionic bond. And the number of electrons which are lost, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन एक लूज किया है और क्लोरीन ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 कहलाएगी, 2 हो जाएगी। Predominantly, the bond formed between a metal and non-metal is generally an ionic bond. पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, दैट बॉन्ड इज सेड टू बी आयोनिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, साझेदारी से बनता है। क्लोरीन having 7 electrons in its outermost shell have to complete its octet can share 1 electron with another chlorine. अगर ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को 8 करना चाहता है तो दूसरे क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है, और इस प्रकार से इनके बीच में ये एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं इसको हम नाम देंगे बॉन्ड पेयर। It is known as bond pair, and the electrons which are present in the outermost shell of an atom but are not participating in the bond formation are known as lone pair. जो इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में शेयर किए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को नाम देंगे बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में तो हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पेयर्स हो गए, या आउटर मोस्ट शेल में तो हैं क्लोरीन के, लेकिन बॉन्ड बनाने में कोई म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, दोज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड लोन पेयर्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड बनते वक्त 2 एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी कर सकते हैं जैसे क्लोरीन ने किया है, और 2 से 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भी वो शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, व्हेन इट फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड विद अनदर ऑक्सीजन एटम इट शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 ऑक्सीजन के ऊपर हम देखें तो 2 लोन पेयर्स हैं। तो ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। नाइट्रोजन ऑन द अदर हैंड हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। When it forms covalent bond with another nitrogen atom, it shares 3 electron, forms triple bond, having 1 lone pair and 3 bond pair. डबल बॉन्ड ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल भी बन सकता है जैसे क्लोरीन में हमने देखा था। क्लोरीन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है
ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब नाइट्रोजन को जब रिएक्ट करना होगा ये तीनों ही कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने होंगे, और इसी कारण से नाइट्रोजन गैस ऑलमोस्ट इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें चाहिए, इट रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी हीट, दैट्स वाई इट डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। इसी कारण से नाइट्रोजन गैस जो है N2 डाइनाइट्रोजन बिहेव जस्ट लाइक इनर्ट गैस। कोवेलेंट बॉन्ड, नाउ व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। जो हमने अभी आपको बताया कि ऑक्टेट रूल होता है कि हर एक एटम ये कोशिश करता है कि उसके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 हो जाए। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल PCl5, phosphorus share 5 electrons with 5 chlorine atom, means phosphorus have 10 electrons surrounding it. SF6, another example, where sulfur shares 6 electrons with 6 chlorine atom, it means surrounding the sulfur there are 12 electrons. Xenon forms bond with fluorine as well, जबकि जीनोन के आउटरमोस्ट सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बावजूद भी जीनोन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर जीनोन डाई ट्राई टेट्रा फ्लोराइड बनाता है। ये भी एक लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की। इस कारण से हमें दूसरी थ्योरीज कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन completely the formation of covalent bond. To explain it, we need another theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. According to this theory, only those electrons will participate in bond formation which are present in the outermost shell. Water, for example, where central atom oxygen forms 2 covalent bond with hydrogen and 2 lone pairs are there. According to the Vesper theory, these electron pairs feel repulsion surrounding the central atom, and this repulsion is in the order lone pair repulsion maximum होता है more as compared to lone pair and bond pair, and minimum repulsion होगा bond pair। यानी लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेंट्रल एटम अरेंज द लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स सराउंडिंग इट इन सच ए पैटर्न दैट इट फील्स मिनिमम रिपल्सन। तो कोशिश ये रहेगी कि लोन पेयर से जितना दूर हो वो ज़्यादा अच्छा है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि उनमें रिपल्सन ज़्यादा है। बॉन्ड पेयर में रिपल्सन मिनिमम है, तो वो थोड़ा सा एक दूसरे के नज़दीक भी आ जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए लोन पेयर को लोन पेयर से दूर करना है। ये बॉन्ड एंगल्स को जो हम स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट काम आएगा। अब आप ये कहेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। मैं मीथेन का एग्जाम्पल लेता हूँ, जिसमें सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 4। आप एक फार्मूला याद कर लें, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन केस ऑफ मीथेन इज इक्वल टू हाफ, कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी 1 होती है उन्हें हम मोनोवैलेंट एटम्स कहते हैं। मोनोवैलेंट एटम्स के एग्जाम्पल हैं मोनोवैलेंट एटम्स हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जो एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। हाफ इंटू 4 प्लस 4 कम्स आउट टू बी 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स आ गए। इसका मतलब मीथेन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब बॉन्ड पेयर्स उनमें से कितने होंगे वो यहाँ से पता लगाया जा सकता है। कार्बन के सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो लोन पेयर्स कितने होंगे? लोन पेयर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस बॉन्ड पेयर्स। तो यहाँ पर अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें, 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं मीथेन में और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर्स की संख्या 0 हो जाएगी। अब यही फार्मूला मैं किसी और मॉलिक्यूल में भी अप्लाई कर सकता हूँ। ओजोन, 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के ओजोन बना है, तो उसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही है। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कितने होंगे पहले तो हम ये पता लगाएंगे। हाफ इंटू 6 प्लस, अब ऑक्सीजन अगर एक सेंट्रल में है तो उसके सराउंडिंग में भी 2 ऑक्सीजन हैं। ओजोन के अंदर ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसलिए मोनोवैलेंट एटम्स की संख्या 0 है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स 3 हो जाएंगे। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिनमें से 2 तो ऑक्सीजन बॉन्ड ही बनाएगा। इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर होंगे। लोन पेयर्स की संख्या अब आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस 2 कम्स आउट टू बी 1। इसका मतलब जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है उसके पास एक लोन पेयर होगा। अब इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मैंने जो 2 बताए हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर हम ओजोन का स्ट्रक्चर बनाकर देखें, ऑक्सीजन सेंटर में है, उस पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। अभी भी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हमें बनाना पड़ेगा। अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 पेयर लोन पेयर हमें मानने पड़ेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर केवल एक सिंगल बॉन्ड है तो हमें यहाँ 3 लोन पेयर बनाने पड़ेंगे और यह बॉन्ड डेटिव बॉन्ड कहलाएगा, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन एटम शेयर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके पास हैं, उसने एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया। इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए, जो हम एरो से दिखा रहे हैं। इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड।
इस प्रकार से बहुत आसानी से आप सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं इसका पता लगा सकते हैं। वेस्पर थ्योरी में एक बार आपको ये पता लग जाए कि सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, इजीली यू कैन प्रिडिक्ट द शेप एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। प्रिय विद्यार्थियों, जो टेबल मैंने बोर्ड पर बनाई है इसकी सहायता से आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं और वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर 0 है, तो उसकी शेप लीनियर होगी। जैसे BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम के सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं और दोनों के दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नहीं है बेरिलियम के पास, तो यहाँ इसकी शेप लीनियर होगी। और इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मैंने आपको पहले ही फार्मूला बताया है, उसकी सहायता से आप निकाल भी सकते हैं। अगर आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की संख्या 3 है और 3 में से आउट ऑफ 3 ऑल द 3 आर बॉन्ड पेयर्स एंड देयर इज़ नो लोन पेयर्स, तो उसकी शेप होगी ट्राइएंगुलर प्लेनर। जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन के आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ शेयर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। इसकी शेप होगी ट्राइएंगुलर प्लेनर, जिसके बीच में बॉन्ड एंगल भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं 120 डिग्री, क्योंकि 360 ये टोटल होगा, एक ही प्लेन में है ये, तो 3 हिस्सों में 360 को डिवाइड करेंगे 120। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 180 बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और अगर आपके सेंट्रल एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, 3 में से 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, जैसा कि ओजोन में होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसकी शेप बेंट शेप होगी। 4 अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसकी शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं टेट्राहेड्रल, जैसा कि मीथेन में होता है। 4 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बॉन्ड पेयर्स के रूप में हैं और एक लोन पेयर है, तो उसकी शेप होगी पिरामिडल, जैसा कि अमोनिया में होता है। 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर है, तो इसकी शेप होगी बेंट शेप, जैसे कि वाटर में होती है, H2S में होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। मीथेन की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। मीथेन में, जिसमें कार्बन का सेंट्रल एटम 4 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसमें सेंट्रल एटम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। outermost shell, that is the second cell, will participate in the bond formation। सेकेंड सेल में 2s है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 2p सब शेल है, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p2। अब ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2p के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं। इट इज़ इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन को अपना ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट करके 2p में हमें ले जाना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा 2s से 2p में। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 हो जाएगी। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं और तैयार हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। लेकिन अभी भी देखें तो यहाँ 2s का 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एज सच
कार्बन बॉन्ड बनाए तो कार्बन के 3 बॉन्ड तो एक जैसे होंगे कि वो तीनों 2p ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन 4th बॉन्ड जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो जो बॉन्ड बनेगा उसकी शेप, उसकी बॉन्ड एनर्जी, उसकी बॉन्ड लेंथ इन तीनों से अलग होनी चाहिए। लेकिन जब हम चेक करते हैं तो मीथेन में कार्बन के चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो एक जैसे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों इलेक्ट्रॉन से एनर्जी के हिसाब से, शेप के हिसाब से अलग ऑर्बिटल में है। ये कैसे मुमकिन है? ये होता है बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड बनाने से पहले 2s का ये एटॉमिक ऑर्बिटल और 2p के तीनों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप। बिल्कुल एक जैसी एनर्जी के 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और इन चारों ऑर्बिटल्स में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेम एनर्जी के होंगे, शेप वाइज भी बिल्कुल एक जैसे होंगे और इन चारों में s करैक्टर भी होगा और p करैक्टर भी होगा, क्योंकि ये s और p के ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग करने से बने हैं। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, इसलिए इनका रेशो भी अगर हम देखें तो इसी रेशो में होगा 1:3। s का रेशो 1 होगा तो p का रेशो 3 होगा। तो ये जो ऑर्बिटल बनकर तैयार होंगे वो न s होंगे न p होंगे, बल्कि अब हम उनको क्या नाम देंगे? sp3। तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर तैयार हो जाएंगे। अब वो चारों ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो एक जैसे ही बॉन्ड होंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होगी। दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्स हो जाना बिफोर प्रायर बॉन्ड फॉर्मेशन, यू कैन से, टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मीथेन में कार्बन के पास अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होती है उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी शेप ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो उसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो उसकी शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी शेप ऑक्टाहेड्रल होगी और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी शेप पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी। ये एक टेबल अगर आप याद कर लें तो बहुत आसानी से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। sp देन इट इज़ लीनियर, sp2 इट इज़ ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 इट इज़ टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 इट इज़ ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। प्रिय विद्यार्थियों, आसानी से ये फार्मूला यूज़ करके आप हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं।
Find the value of x by using half into valence electrons. Valence electrons किसके? सेंट्रल एटम के. Plus how many number of monovalent atoms are bonded to the central atom. और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है पूरे आयन के ऊपर, पॉलीएटॉमिक आयन है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अमोनियम आयन है, अमोनियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये +1 है, ये यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, -1. और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आयन है, सल्फेट है, -2 है उसके ऊपर, तो ये -2 चार्ज आपको ऐड करने हैं. ऐड द चार्ज ऑफ एनायन एंड सब्ट्रैक्ट द चार्जेस ऑफ कैटायन. इसकी सहायता से आप x की वैल्यू पता लगा सकते हैं. और x की वैल्यू अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन. 7 ऑर्बिटल्स अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो एक s का ऑर्बिटल होगा, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स p के होंगे और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स d के होंगे. इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. PCl5 हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है. Phosphorus is the central atom having 5 electrons in its outermost shell. There are 5 chlorine atoms bonded to it, which are all the monovalent atoms, so it means it is 5. कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है नहीं, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 आएगी. इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा. तो इसकी शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, यानी आपके एक ट्रायंगल बनाकर और उसके सेंटर में फास्फोरस और यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम एक्सियल पोजीशन पर होंगे. यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा. दीज आर कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड्स. और ये बॉन्ड जो एक्सियल है और इक्विटोरियल के बीच में ये 90 डिग्री का होगा. दिस शेप इज नोन एज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल. अगर हम SF4 की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन पता लगानी है. इसी तरीके से बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं. सल्फर के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मोनोवेलेंट एटम्स 4 हैं, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ x की वैल्यू 5 आती है. इसका मतलब अगेन हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी sp3d. लेकिन यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर हैं. सल्फर बॉन्ड 4 ही एटम के साथ बना रहा है. हाइब्रिडाइजेशन तो वही है sp3d एज इट वाज इन केस ऑफ PCl5. लेकिन यहाँ बॉन्ड पेयर्स की संख्या देखें तो 4 ही हैं, तो एक क्या होगा? लोन पेयर. अब आप वेस्पर थ्योरी की टेबल पर देखें कि अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है तो उसकी शेप सीसा होगी, यानी वही ज्योमेट्री बनेगी जैसा कि हमने PCl5 में बनाया था. लेकिन एक लोन पेयर होगा. अब ये लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर भी हो सकता है और इक्विटोरियल पर भी. ये फ्लिप फ्लॉप होता रहेगा. इसी कारण से इस शेप का नाम क्या रखा है? सीसा. कि ये लोन पेयर कभी एक्सियल पोजीशन पर और कभी इक्विटोरियल पोजीशन पर, किसी भी तीनों में से किसी इक्विटोरियल पोजीशन पर रह सकता है या फिर एक्सियल पोजीशन पर भी रह सकता है. तो कुल मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी का यूज़ करके आप डिफरेंट मॉलिक्यूल की शेप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप घर पर C2H6, C2H4, C2H2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन पता लगाएं और उनकी शेप बनाएं.